Hello, my dear students. Welcome to all of you in VR Mathematics Academy. This is Dr. Vivek Rohira, your mathematics mentor. In the continuous distribution, हम already normal distribution के बारे में study कर चुके हैं. And after normal distribution, in the continuous distribution, the second important distribution is uniform distribution. The next distribution is uniform distribution. So, what is uniform distribution? In the uniform distribution, if x is a continuous random variable, again here we are going to discuss about the continuous distribution. So यहाँ पर हम कौन सा random variable use करेंगे? यहाँ पर हम use करेंगे continuous random variable. So if x is a continuous random variable, then the probability density function over an interval given by a constant function, then this is basically called uniform. तो particular एक interval में function की value constant आ रही है, then this is basically called uniform distribution. So how we will define the uniform distribution? Let's see. If x is a continuous random variable, then in interval a comma b, the PDF, that is probability density function, fx is equal to k, where x is between a and b and 0 otherwise. मतलब पर्टिकुलर किसी इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है. मतलब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, it is a constant. So that's why we can say this is the uniform distribution. Okay, now the point is how we can find the value of k. Since fx is a PDF, implies that minus infinity to infinity integration fx dx will be equal to 1. Okay, now this integration is from a to b, और a to b के बीच में fx की वैल्यू कितनी दे रखी है? k into dx is equal to 1. Because a to b के अलावा जो भी लिमिट इसके अंदर रिमेनिंग हो गई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीच में. एग्जाम्पल दैट इफ यू ड्रॉ द नंबर लाइन, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी. ओनली फॉर दैट इंटरवल फंक्शन का वैल्यू कितना दे रखा है? k. मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कितना दे रखा है? k. फॉर दैट इट इज 0, फॉर दैट इट इज 0. सो हम इस इंटरवल को इग्नोर करते हैं, ओनली इस इंटरवल को इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट? और जैसे ही हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, then k is constant, dx integration x a to b is equal to 1, implies that k into b minus a is equal to 1. So the value of k is 1 upon b minus a. तो k का वैल्यू कितना आ गया? 1 upon b minus a. The meaning is that हमारे पास जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का pdf होगा, this pdf is given by 1 upon b minus a, where x is between a to b and it will be 0 otherwise. Okay, it will be 0 otherwise. So this is the PDF of uniform distribution. Okay, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक डेफिनेशन स्टडी करी, और इस डेफिनेशन में हमने उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट किया. नाउ the first important point is that is how we will find the mean of uniform distribution. किसी भी uniform distribution का mean या expectation कैसे find out करेंगे? It is given by e of x, which is equal to minus infinity to infinity x into fx dx. ये हमने expectation में already study कर रखी है इसकी definition. यहाँ पर हमने continuous random variable के लिए definition apply कर दी. Now since the function is defined between a to b लिख दिया x as it is, और fx की वैल्यू कितनी है? 1 upon b minus a into dx. Okay, now 1 upon b minus a as it is, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x square by 2 from a to b. Now this is 1 by 2, 1 upon b minus a, और लिमिट जैसे अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे देन इट विल बी बी स्क्वायर, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे देन इट विल बी ए स्क्वायर.
So it will be b square minus a square. देखिए b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, b माइनस ए एंड b प्लस ए. तो यहाँ पर b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या रिमेनिंग रहेगा, b प्लस ए बाई 2. सो द मीन or expectation, finally we can say that it will be b plus a by 2. This is the mean first we find out for the uniform distribution. In the similar way, now we will find the variance of uniform distribution. So the next point is variance of uniform distribution. Variance of uniform distribution. What is the variance? Variance क्या होता है? Variance of x is equal to expectation of x square minus expectation of x whole square. तो ये definition होती है किसकी? Variance की. Now e of x, that is expectation of x या mean, ये हम already find out कर चुके हैं. Only हमें क्या find out करना है? Expectation of x square. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्रॉम ए टू बी. एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एफ एक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे? 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स, क्योंकि एफ एक्स किसके लिए डिफाइंड है? फ्रॉम ए टू बी के लिए डिफाइंड है एफ एक्स. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर लिमिट भी हमने क्या लिखी है? ए टू बी. माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट को हमने पहली स्टेप में ही ए टू बी में चेंज कर दिया इसको. नाउ 1 अपॉन बी माइनस ए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 ए टू बी. ओके, नाउ इट विल बी 1 अपॉन 3 1 अपॉन बी माइनस ए. अगेन हम लिमिट अप्लाई करेंगे, देन कितना आ जाएगा? बी क्यूब माइनस ए क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, देन दिस विल बी 1 अपॉन बी माइनस ए. इट विल बी बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर. Okay, now b minus a, they both will be cancel out. So expectation of x square हमारे पास कितना आ गया? b square plus ab plus a square divided by 3. So this is we find out expectation of x square. But हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? हमें रिक्वायरमेंट है वेरिएंस ऑफ x की. तो हम वेरिएंस ऑफ x में ये फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं और मीन की वैल्यू भी पुटअप कर देते हैं, एंड लेट्स सी कि हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आता है. ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमें पर्टिकुलर हर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होने चाहिए, जैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में स्टडी किया, राइट. तो यहाँ पर वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, that is b plus a divided by 2 whole square. b square plus ab plus a square divided by 3, b square plus a square plus 2ab divided by 4. Okay, now 1 upon 12 हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में 12 एलसीएम ले लिया, तो 1 upon 12 बाहर आ गया, और इधर आ गया 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, दिस इज द न्यूमरेटर वी फाइंड आउट. फाइनली इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या आता है. 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, दैट इज प्लस का b स्क्वायर प्लस का 4ab माइनस का 6ab, दैट इज माइनस का 2ab, और प्लस का 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, दैट इज प्लस का a स्क्वायर. तो फाइनली हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स, और वी कैन से सिग्मा स्क्वायर कितना आ गया? b माइनस a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. सो दिस इज सो फार वी फाइंड आउट वेरिएंस ऑफ एक्स for the uniform distribution and standard deviation, that is sigma. इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? b minus a upon 2 root 3. So it will be b minus a upon 2 root 3. So far we have find the mean, variance and standard deviation of uniform distribution.
तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने ऑलरेडी रिजल्ट फाइंड आउट कर लिए, इसका पीडीएफ क्या होगा ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम करते हैं और समझते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी वन ऑफ द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। The problem is if x is uniform distribution, if x is uniform distribution with mean 1 and variance 4/3, then find probability of x less than 0. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? probability of x less than 0 फाइंड आउट करना है। देखिए जब भी लिखा आ रहा है x इज ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होता है? पर्टिकुलर ओवर अ इंटरवल। तो ओवर अ इंटरवल दैट इज 1/b minus a where x is between a and b and 0 when otherwise. Okay, this is the PDF of uniform distribution we know. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक तो मीन गिवन है 1, मीन कितना गिवन है? 1। तो मीन क्या होता है? x bar b plus a upon 2. This is we have to given the 1. तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आ गई a plus b is equal to 2. This is the first equation. The second one is variance. वेरिएंस कितना गिवन है? देखिए वेरिएंस क्या होता है? b minus a whole square divided by 12. This is the variance जो हमने फाइंड आउट किया है अभी, और ये वेरिएंस कितना दे रखा है? 4/3 implies that b minus a whole square is equal to 16, or we found that b minus a is equal to plus minus 4. This is equation number 2. तो दो इक्वेशन आ गई my dear students. The first is a plus b is equal to 2 and the second one is b minus a is equal to plus minus 4. Okay, जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए a plus b is equal to 2 और एक इसमें इक्वेशन ले लेते हैं माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 4। एक बार प्लस का साइन ले लिया मैंने, यहाँ पर ऐड करेंगे दोनों जीरो हो जाएंगे, a से कैंसिल हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो b का वैल्यू आ जाएगा 3, b का वैल्यू 3 पुट अप करेंगे, देन a का वैल्यू -1। ओनली दिस वैल्यू विल बी परमिसिबल। क्यों? बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है पर्टिकुलर इंटरवल ए बी में। पर्टिकुलर इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, दैट इज ए किससे लेस होना चाहिए? b से लेस होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ a इज -1 and the value of b will be equal to 3. Now what we have to find out? We have to find out probability x less than 0. हमें क्या फाइंड आउट करना है? probability x less than 0 फाइंड आउट करना है। जब हमें probability x less than 0 फाइंड आउट करना है और इंटरवल क्या गिवन है? हमें इंटरवल गिवन है -1 3। तो लेस देन 0 कैसे फाइंड आउट करेंगे? -1 से स्टार्ट होगा, कहां तक चलेगा? ये 0 तक, एंड दिस इज fx into dx. नाउ -1 to 0, पीडीएफ कितना है? 1/b minus a, b minus a करेंगे, दैट इज 3 minus -1 into dx. ओके, सो 1/4 is out of the integration, इधर इंटीग्रेशन x हो जाएगा, -1 to 0, so finally it will be 1/4. So the probability x less than 0 कितना फाइंड आउट किया हमने? 1/4 के इक्वल। So my dear student, this is the way, that is how we can solve the problem based on uniform distribution. So this is the first basic problem on uniform distribution. The second problem is, let's see the second problem. The second problem is, there is a bus stop, this is a bus stop and buses are arriving at the bus stop after every 15 minutes. हर 15 मिनट में यहाँ पर एक बस आ रही है। ओके, आफ्टर एवरी 15 मिनट अ बस अराइव एट द बस स्टॉप, आफ्टर एवरी 15 मिनट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा पॉइंट इसमें गिवन है
पैसेंजर आर अराइविंग एट द बस स्टॉप इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। जो पैसेंजर आ रहे हैं बस स्टॉप पे वो कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो द अराइविंग ऑफ पैसेंजर, यहां से हमें पता लग गया कि किसकी प्रॉब्लम है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। अराइविंग ऑफ पैसेंजर फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और जो पैसेंजर आ रहे हैं, पैसेंजर कब आ रहे हैं? बिटवीन 9 AM to 9:30 AM। Passenger are arriving between 9 AM to 9:30 AM in the uniform pattern। जब ये यूनिफॉर्म पैटर्न में बिटवीन 9 to 9:30 AM आ रहे हैं, दैट इज जो यूनिफॉर्म जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है x, वो कहां से कहां आ जाएगा? 0 to 30। हम ये मिनट के लिए बात कर रहे हैं। सो x विल बी बिटवीन 0 to 30 मिनट। बाय दिस वी कैन फाइंड आउट दिस रेंज। तो हमारे पास यहाँ पर पहला तो इंटरवल आ गया 0 to 30। ये तो इंटरवल आ गया। इंटरवल आते ही हमने सॉल्यूशन में पीडीएफ क्या ले लिया यहाँ पर? द पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1/b minus a, that is 1/30 when x is between 0 to 30 and 0 otherwise. So this is the probability density function for uniform distribution we find out. Now अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पैसेंजर हैज टू वेट। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? पैसेंजर हैज टू वेट। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। पैसेंजर हैज टू वेट, नंबर 1, लेस देन 5 मिनट। पैसेंजर को क्या करना हो? लेस देन 5 मिनट ही वेट करना पड़े, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब पैसेंजर को 5 मिनट से कम का वेट करना पड़ेगा तो पैसेंजर कब पहुंचेगा बस स्टॉप पे? लेट्स सी। देखिए यहाँ पर हमने बना दिया पैसेंजर कितने बजे से कितने बजे के बीच में आ रहे हैं? 9 से 9:30 के बीच में आ रहे हैं पैसेंजर आर कमिंग एट द बस स्टॉप बिटवीन 9 to 9:30 AM and buses are arrive at the bus stop after every 15 minutes। तो आफ्टर 9 AM बस कब आएगी? पहली बस कब आएगी? फर्स्ट बस इज कमिंग एट 9:15 एंड द सेकंड बस विल कम एट 9:30। ओके, दो बसेस आएंगी, फर्स्ट एट द 9:15 एंड द सेकंड वन एट द 9:30। तो पैसेंजर को 5 मिनट से कम का वेट करना पड़े, इसके लिए पैसेंजर को कब आना पड़ेगा? पैसेंजर हैज टू कम एट 9:10 AM, या तो वो 9:10 पर आ जाए, और पैसेंजर हैज टू कम एट 9:25 AM। ओके, या तो ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या फिर ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, दोनों में ही। या तो फर्स्ट बस को यदि पैसेंजर फर्स्ट बस में जाएंगे और उनको 5 मिनट से कम का वेट करना पड़े, देन दिस टाइम पीरियड दे हैव टू फॉलो। और यदि उनको सेकंड बस में जाना है, then they have to come at 9:25 AM to follow that the probability should be less than 5 minutes, has to wait। Okay, so this two pattern they will follow। तो यहाँ पर दो कंडीशन बन जाती है। जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बिटवीन 10 to 15 एंड द सेकंड वन इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिटवीन 25 to 30। So these are the two cases, and in two cases when we will find the probability, then this will be between 10 to 15 fx dx, and here between 25 to 30 fx dx। fx की वैल्यू कितनी है? 1/30। देखिए जब भी इस रेंज में है 0 to 30 की रेंज में, ये भी 0 to 30 की रेंज है, ये भी 0 to 30 की रेंज है, तो 1/30 तो बाहर आ जाएगा दोनों में से। यहाँ पर कितना बच जाएगा? इंटीग्रेशन 10 to 15 dx, इधर आ जाएगा 25 to 30 dx। ओके, सो इट विल बी 1/30। देखिए इसका इंटीग्रेशन आएगा x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 - 10। इसका इंटीग्रेशन भी x आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 - 25। नाउ इट विल बी इक्वल टू 1/30। ये कितना आ गया? 5, एंड ये भी 5, 5 + 5 10।
तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/3. So a passenger has to wait less than 5 minutes, then its probability will be equal to 1/3. This is the first case जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है. सेकंड क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया है? The second case is when a passenger has to wait at least 10 minutes. कम से कम 10 मिनट का पैसेंजर को वेट करना पड़े. जब कम से कम 10 मिनट का पैसेंजर को वेट करना पड़े, देन इस केस में पैसेंजर कौन से टाइम पीरियड में पहुंचेंगे? देखिए, फर्स्ट बस आ रही है 9:15 पे, सेकंड बस आ रही है 9:30. व्हेन अ पैसेंजर हैज टू वेट एटलीस्ट 10 मिनट, तो एटलीस्ट 10 मिनट का मतलब ये हुआ या तो पैसेंजर 9 o'clock पे आ जाए या 9:05 पे आ जाए, क्योंकि 9:05 पे आएगा तो ये 10 मिनट का हो गया. एटलीस्ट 10 मिनट का मतलब क्या हुआ? कम से कम 10 मिनट का वेट करना पड़े, या उससे ज्यादा का भी वेट करना पड़ सकता है. तो उससे ज्यादा का कितना वेट करना पड़ेगा? जब वो 9 से 9:05 के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट है और यहाँ पर 10 मिनट से ज्यादा का वेट हो जाएगा. दैट्स व्हाई द फर्स्ट रेंज विल बी 9 to 9:05 AM. And the second range will be 9:15 to 9:20 AM. क्योंकि 9:15 से 9:30 तो 15 मिनट हो गया, 20 से 30 कितना हो गया? 10 मिनट. तो फर्स्ट पैटर्न तो ये रहेगा पैसेंजर का आने का. सेकंड रहेगा बिटवीन 9:15 to 9:20. इसमें पैसेंजर को कम से कम 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा. सो इन दैट केस द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड आउट बिटवीन 0 to 5 and the second probability we have to find out between 15 to 20. In both cases हम पहले जैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, then it will be 0 to 5 fx dx and it will be 15 to 20 fx dx. In both cases fx की वैल्यू 1/30 है, बाहर ले लेंगे. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5 dx and इंटीग्रेशन फ्रॉम 15 to 20 dx. Now 1/30. फर्स्ट इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेकंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20 minus 15. 5 plus 5 10, 10/30 that is 1/3. यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/3. So a passenger has to wait at least 10 minutes, then इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 1/3. So my dear student, here I explain you about the uniform distribution. What is the PDF of uniform distribution? Uniform distribution कैसे एक particular interval में defined होता है? What is the mean of uniform distribution? What is the variance? What is the standard deviation? How we solve the question based on uniform distribution, जिसके अंदर concept हो mean और variance का, और हम एक uniform distribution की word problem को कैसे solve करेंगे जिसमें पैसेंजर का अराइवल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें हम पर्टिकुलर उनका वेटिंग टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो दिस इज वी हैव कंप्लीटेड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू नेवर सब्सक्राइब माय चैनल, so please never forget to subscribe my channel and also share this video. This is very helpful for your friends who are in the B.Tech third semester. Thanks to all of you.